Alright students, welcome back for today's class on India 16. So today we'll continue where we left in the last class. So students, today we will learn about the next concept, which is treatment of accumulated depreciation when we are revaluing our assets. So there are two ways how you'll treat your accumulated depreciation. Okay, the first one is that you proportionate increase or decrease the gross carrying value and the accumulated depreciation, or you eliminate first the accumulated depreciation and then record the revaluation. Okay, so let's understand it by way of uh, an example. Okay, so there are two ways, as we have seen on the screen. There are two ways to treat accumulated depreciation. So first one is that whatever increase or decrease is happening due to revaluation. So revaluation will cause an increase or decrease in value of asset, right? So revaluation increase or decrease. So what you will do is you will calculate the increase or decrease percentage over the net value of the asset, and then increase the gross value and accumulated depreciation with the percentage increase or decrease percentage increase or decrease in net value. Okay, second thing is you can first set off or knock off the accumulated depreciation balance with gross value. So your asset will then become equivalent to net value, and thereafter do the increase or decrease in value of the asset as per the revaluation needs to be done, which needs to be done. ओके, सो पहले आप क्या करोगे बच्चों, इसके अंदर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पहले ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट से सेट ऑफ कर दोगे, और जो वैल्यू बचेगी उससे उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, वट एवर नीड्स टू बी डन. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, let's look at one example. This question was also coming from study material. So here, if you look at this example, it says that Jupiter Limited has an item of property, plant and equipment with an initial cost of $1 lakh, 1 lakh rupees. तो क्या एक कॉस्ट है बेटा आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की? 1 लाख रुपए. एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन accumulated depreciation amounted to 55,000. सो आपकी जो accumulated depreciation होगा उस दिन, वो कितना होगा बेटा? उस दिन आपका depreciation होगा 55,000, जिस दिन आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो. तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी इस एसेट की बेटा उस दिन? 45,000. नाउ इन्होंने बोला द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट बाय रेफरेंस टू द ट्रांजैक्शन इन सिमिलर एसेट्स इज असेस्ड टू बी 65,000 रुपीज. अब हम बोल रहे हैं कि हमारी जो फेयर वैल्यू है एसेट की, जिसकी नेट वैल्यू 45 है, इसकी फेयर वैल्यू 65 है, तो हमारा जो नेट वैल्यू में इंक्रीज है वो बेटा वो कितना है? 20,000. तो आप इस 20,000 को के इंक्रीज को देखोगे कि ये 20,000 का इंक्रीज 45,000 का कितना परसेंटेज है, और उसी परसेंटेज से मेथड वन में आप ग्रॉस वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज कर दोगे. और सेकंड मेथड में बेटा आप क्या करोगे? पहले ये 55,000 को 1 लाख से नेट ऑफ कर दोगे, उसके बाद जो नेट वैल्यू जाएगी 45,000 उसको आप increase कर दोगे by 20,000 to 65,000. These are the two methods that how would you record the accumulated depreciation on revaluation. All right. So now let's understand. Let's solve this question, beta. So I'm moving to only screen mode. Okay. Let me open the notebook. Let's open it side by side. Okay. This is our question, beta, in the right side of the screen, and we will solve it here. So method वन में हमने क्या समझा है? मेथड वन में बेटा आप
जो रिवैल्यूएशन आपने किया है उस वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे बाय इंक्रीजिंग द ग्रॉस वैल्यू एंड बाय इंक्रीजिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोथ। ठीक है। सो मेथड वन में सिंपल सा क्या है आपका, आपको लेना है पर्टिकुलर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ग्रॉस वैल्यू, फिर आपको लिखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड आपकी नेट वैल्यू। ठीक है। फिर आपकी जो वैल्यू है बिफोर रीवैल्यूएशन आपको ये लिखनी है। फिर आपको रीवैल्यूएशन गेन लिखना है, रीवैल्यूएशन इंक्रीज लिखना है और गेन लिखना है। फिर बेटा आपको लिखना है परसेंटेज इंक्रीज जो आपको करना है, और आफ्टर रीवैल्यूएशन आपकी अमाउंट करेंगे। ठीक है। बिफोर रिवैल्यूएशन ग्रॉस वैल्यू कितना है बेटा आपकी 1 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 55,000 है और नेट वैल्यू आपकी 45,000। 45,000 को आपको रिवैल्यूएशन गेन कितना करना है 20,000। ये परसेंटेज कितना है बेटा आपका 20,000। तो ये परसेंटेज है बेटा आपका परसेंटेज इंक्रीज, निकाल लो आप इसको। ये हो जाएगा आपका 20,000 डिवाइड बाई 45,000 इंटू 100, विच विल बी बेटा इक्वल टू 44.444%। सो आपको जो परसेंटेज इंक्रीज करना है वो कितना है 44.444%। तो अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो आफ्टर रिवैल्यूएशन आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,44,444। तो इसकी हो जाएगी आपकी 79,444, और ये वैल्यू आपकी जो नेट आ जाएगी वो हो जाएगी 65। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व योर फर्स्ट मेथड। नाउ इन सेकंड मेथड बेटा, अच्छा इसकी जनरलिटी से देख लेते हैं साथ साथ। तो बेटा आपका जिसके अंदर आपने पीपीएनई को इंक्रीज किया है, तो पीपीएनई आपका जो आएगा वो क्रॉस वैल्यू पे होगा। वो कितने से इंक्रीज होगा बेटा आपका 44,444 से। फिर आपका बेटा इसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा, और बेटा एक आपका होगा रिवैल्यूएशन गेन विच विल गो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस और टू ओसीआई। ये आपका डेबिट नहीं होगा, ये आपका क्रेडिट होगा, ये भी आपका क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपका 20,000 बैलेंस आएगा, तो रिमेनिंग जो आपका बैलेंस है 24,444, ये बेटा किसमें चला जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दिस इज योर जर्नल एंट्री दैट यू विल पोस्ट फॉर मेथड वन। नाउ मूविंग ऑन टू मेथड टू। ये सिंपल है मेथड टू, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे बेटा, सेट ऑफ करोगे एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को टू एसेट। सो आपकी पहली एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये कितने से होगा बेटा आपका 55,000 से आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एंड इसमें आप क्या क्रेडिट कर दोगे, ये आपका चला जाएगा पीपीई में, क्रॉस वैल्यू। तो ये हो जाएगी बेटा आपका 55,000। इसके बाद आपका पीपीएनई कितना हो जाएगा 45,000। नाउ अब आपको रिवैल्यू करना है, तो इसमें ग्रॉस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम नेट वैल्यू में उसको एडजस्ट कर दिया है। नाउ पीपीएनए को आपको इंक्रीज करना है बेटा, आप कितने से 20,000 से, और ये कहाँ चला जाएगा आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस 20। That's it. That's how you will record your answer for treatment of accumulated depreciation on revaluation. There are two methods allowed. One is that you first set off the accumulated depreciation with PPNE and then do the revaluation. Second method is beta that you calculate the revaluation gain or loss as a percentage of net value and then increase or decrease the gross value and accumulated depreciation with the similar and then post the journal. This is your journal entry in this. Now beta, next concept that we will learn is the treatment of subsequent treatment of revaluation surplus. कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉर्ड करो। देखो बेटा, पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जो आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो
रिवैल्यूड एसेट की वजह से जो आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है रिवैल्यूड एसेट की वजह से, दैट शेल बी इक्वल टू दैट अमाउंट। आप रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो किस में ट्रांसफर कर दोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, at the time of sale of the asset, this revaluation surplus will be transferred to retained earnings again. So basically हम क्या बोल रहे हैं कि at the time of extra depreciation that you are charging, because आपने एसेट को upward revalued किया है, तभी तो आपका revaluation surplus create हुआ है ना बेटा, जब आपने एसेट को upward revalue किया है। तो क्योंकि आपने upward revalue किया है एसेट को, now you would have to you would have to चार्ज एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन। जो आप एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन, वो क्यों चार्ज हो रहा है? बिकॉज आपने एक रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया, आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया हुआ है। अब आप क्या करोगे? जितना भी आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट को आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करो। सेकंड थिंग बेटा, जब आपका वो एसेट सेल होगा उस टाइम, उस टाइम भी जब आपका एसेट सेल होगा उस टाइम भी आपका जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस बचेगा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे रिटेन्ड अर्निंग्स। दीज आर द टू ट्रीटमेंट दैट यू नीड टू। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है तो उसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। It says that an item of PP&E was purchased for 9 lakh rupees on 1st of April 2001. It is estimated to have a useful life of 10 years and is depreciated on a straight line basis. और उसको आप straight line basis पे depreciate कर रहे हो on 1st April 2003, मतलब 3 साल बाद, 1, 2 and 3. So this is when you purchase the asset, 1st April 2001. After year 1 it will be 1st of April 2002, and after second year it will be 2003. But it will be after 2 years, not 3 years. After 2 years we are having some more discussion, some more data. It says that on 1st of April 2003, that is after 2 years, the asset is revalued to 9,60,000 rupees. So हमने एसेट को कितने पे रिवैल्यू कर लिया? 9,60,000 रुपीज पे रिवैल्यू किया है। The useful life remains unchanged as 10 years. Ignore the impact of deferred taxes. Calculate depreciation and revaluation surplus for year 2003 to 4 as per Ind AS 60. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है फॉर ईयर 2003 एंड 4। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है? टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर एसेट की कॉस्ट है 9 लाख और एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है आपको? 10 ईयर्स। तो पर ईयर आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 90 के। तो 90 के अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो सेकेंड ईयर के एंड में आकर आपके पास एसेट की कितनी वैल्यू बचेगी बेटा? 7,20,000। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एसेट। अब इस एसेट को हम क्या कर रहे हैं? अब रीवैल्यू करें। अच्छा, इसमें साथ साथ आप रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू भी निकाल लो। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो बेटा यहाँ पर नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका अब बाद में आएगा। अब इस दिन हम इसको क्या कर रहे हैं? इस एसेट को हम अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं एंड वी आर इंक्रीजिंग दिस टू रुपीज 9,60,000। आपका बेटा यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना क्रिएट हो जाएगा? बेटा रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा आपका 7,20,000 को 960 से माइनस करोगे तो 2,40,000। तो आपका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो होगा 2,40,000। अब बेटा आपकी यूजफुल लाइफ इस दिन तो 8 ईयर्स ही बची है, तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का डिप्रेशन वो कितना होगा? 9,60,000 डिवाइड बाई 8। 9,60,000 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा बेटा? 1,20,000। तो आपका जो डिप्रिसिएशन आएगा ईयर 2003 का वो आएगा 1,20,000। अब बेटा आपने ये देखो, आपने ड्यू टू डिवैल्यूशन कितना ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज किया है? 30,000। अगर आप रिवैल्यूशन नहीं करते तो आपका डिप्रेशन 90 के होता, और आपने रिवैल्यूशन किया तो आपका डिप्रेशन कितना आ गया? 1,20,000। तो आपका 30,000 ज़्यादा डिप्रेशन चार्ज हुआ है। तो जब जो ज़्यादा डिप्रेशन चार्ज हुआ है उस अमाउंट को आप रिवैल्यूशन सरप्लस से किस में ट्रांसफर कर दोगे? इट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। सो बेसिकली अल्टीमेटली इसने क्या पूछा है? आपने डेप्रिसिएशन पूछा है इसने, और रिवैल्यूशन सरप्लस का बैलेंस पूछा है। तो रिवैल्यूशन सरप्लस आपका ईयर एंड पे कितना होगा? डेप्रिसिएशन तो आपका निकल गया, रिवैल्यूशन सरप्लस कितना हो जाएगा? 2,40,000 माइनस 30,000 विच इज 2,10,000। तो आपके दो फिगर्स हैं जो हमें आंसर करनी है। तो ये 1,20,000 एक आपका आंसर आ गया और एक आपका 2,10,000। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है,
ओके बेटा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज सिंपली बेसिकली, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो क्या होता है? डेप्रिसिएशन अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और द अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी? वो वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, ये तो वही डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी। ठीक है, तो वो वैल्यू जिसका मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, जिस वैल्यू को मुझे डेप्रिशिएट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट। नाउ व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू इज नथिंग बट आपकी स्क्रैप वैल्यू जो आपको रिसीव होगी जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होगी, तो उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये वैल्यू मुझे रिसीव होगी स्क्रैप वैल्यू, तो मुझे डेप्रिशिएट कितना करना है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को डेप्रिशिएट करना होता है। नाउ बेटा, remember this residual value that we consider, it is current value that we will get from disposal of asset. This is not the value after the end of useful life. This is the current value because this cost is also current value. So residual value भी जो होगी आपकी वो current value होगी, current estimation होगा कि आपको कितनी पैसा मिलेगा। Now, what is depreciation? Depreciation is nothing but systematic allocation of depreciable amount over the useful life of asset. सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब बेटा एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो स्टैंडर्ड है वो कोई डेप्रिसिएशन करने का कोई मेथड नहीं बताता है, किस रेट पे आपको डेप्रिसिएशन करना है या किस मेथड पे आपको डेप्रिसिएशन करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डज नॉट टेल यू दैट डेप्रिसिएशन मेथड्स क्या क्या होंगे। स्टैंडर्ड ओनली टेल्स यू दैट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। नाउ आपकी मर्जी है इसको सिस्टमैटिक एलोकेशन को आप कैसे करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस एसेट से बेनिफिट कैसे हो रहे हैं। और ये रिकॉर्ड कहाँ होता है? ये रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड। अब नाउ रिमेंबर, दिस डेप्रिसिएशन जो है ये हम जो चार्ज करते हैं ये कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, मतलब ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको एसएलएम पे चार्ज करना है या आपको डब्ल्यूडी पे चार्ज करना है। ये कंपनी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द systematic how companies getting benefit from the asset, that what at what at what rate company is getting benefits from the asset। जैसे भी कंपनी को एसेट से बेनिफिट हो रहा होगा उस हिसाब से कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेगी। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन गिवन है, यहाँ पर मेथड जो है वो गिवन नहीं है। डेप्रिसिएशन को आप एलोकेट कर सकते हो यूजिंग एसएलएम, डब्ल्यूडीपी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और एनी अदर मेथड व्हिच रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब डेप्रिसिएशन को आप किसी भी मेथड पे रिकॉर्ड कर सकते हो विच शोज विच शोकेसेस बेसिकली कि आपको बेनिफिट्स उससे कैसे रिसीव होंगे, उस मेथड पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे। बट स्टैंडर्ड आपको कोई मेथड नहीं बताता। स्टैंडर्ड बोलता है आप कोई भी मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है ये आपका जो है ये एस्टिमेट कहलाता है, बिकॉज ये आपको खुद पता लगाना होता है कि आपको रिकॉर्ड किस पे करना है, डेप्रिसिएशन को किस मेथड पे रिकॉर्ड करना है। ऐसा स्टैंडर्ड ने कुछ प्रिस्क्राइब की है एंड हेंस इसलिए सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड इज अ मैटर ऑफ एस्टिमेशन। नाउ बेटा एक चीज और ये है कि स्टैंडर्ड ये बोलता है कि depreciation method that is based on revenue is not appropriate because revenue is affected by other inputs and processes, selling activities, sales volume and prices, inflation which has no bearing upon how asset is consumed। क्योंकि रेवेन्यू में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसका एसेट के कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि आपके प्राइसेस, इन्फ्लेशन, वो भी रेवेन्यू में कंसिडर किया जाता है रेवेन्यू के कैलकुलेशन में। बट क्या उसका एसेट के कंजम्पशन से कुछ रिलेशन है? नहीं। तो इसलिए डेप्रिसिएशन मेथड विच इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज नॉट अप्रोप्रिएट। स्टैंडर्ड हैज सेड वी शुड नॉट यूज अ मेथड ऑफ depreciation which is based on revenue। Now students, we need to understand few more concepts कि depreciation को आपको commence कब करना है, कब start करना है। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं कि जैसे ही आपका रेडी है for its use तब से आपको depreciation चार्ज करना है। depreciation कब से चार्ज होगा? when asset is ready to use, ना कि उस दिन से जब asset is actually used। एक्चुअली यूज का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, हमें अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट कर देना चाहिए? जब एसेट इज रेडी टू यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशंस। सो एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना है। डज नॉट डिपेंड ऑन व्हेन एसेट इज स्टार्टेड टू बी यूज्ड। बेटा अब क्या है, अब आपका जो ये
इंड AS 16 है, ये आपको कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग के लिए भी सजेस्ट करता है कि मानो आपने एक एसेट को बाय किया है और उस एसेट में काफी सारे एलिमेंट्स है। आपने एक एसेट को बाय किया है और उस एसेट को जब आपने बाय किया है तो उसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है। तो स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप उन एलिमेंट्स को सेपरेटली कंपोनेंट रिकॉर्ड करके उनको आप डिप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है, ईच सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली एट इनिशियल रिकॉग्निशन। एंटिटी एलोकेट्स कॉस्ट टू ईच सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। टू कंपोनेंट्स हैविंग ऑफ सेम पीपीएनई हैविंग सेम यूजफुल लाइफ कैन बी एंड डेप्रिसिएशन मेथड कैन बी मर्ज टुगेदर टू डिटरमाइन डेप्रिसिएशन चार्ज। अगर आपके दो कंपोनेंट्स हैं जिनकी यूजफुल लाइफ सेम है और जिनका डेप्रिसिएशन मेथड सेम है, उन दोनों को आप मर्ज करके एक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि एक पूरे एसेट जिसके अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और उनकी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है और उनकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप उनको सेपरेटली डेप्रिशिएट करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, विच विल बी बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल है बेटा एयरक्राफ्ट का। सो एयरक्राफ्ट में आपके जैसे दो कंपोनेंट्स है, ठीक है, फ्यूजलेज, अंडर कैरेज एंड इंजन्स। तो उनकी कॉस्ट जो है टोटल कितनी है, एक की 20,000 लाख 20,000 लैक्स है, एक की 5,000 लैक्स है और इसकी 8,000 लैक्स है। और इसकी यूजफुल लाइफ जो है सबकी डिफरेंट है, इसकी 20 ईयर्स है, इसकी 500 लैंडिंग्स है और इसकी 1600 लैंडिंग्स है। तो जब आप फ्यूजलेज का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आप उसको पर ईयर के बेसिस पे निकाल सकते हो, दैट इज पर ईयर। तो आपका कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 1,000 लैक्स। जब आप अंडर कैरेज का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, लैंडिंग्स के बेसिस पे चार्ज करोगे। तो आपकी जितनी भी लैंडिंग्स हुई होंगी ईयर में उसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद 100 पर लैंडिंग, 100 लैक्स पर लैंडिंग। और इंजन का डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे चार्ज होगा, फ्लाइंग आवर्स के बेसिस पे। तो अगर आपने ईयर में 1000 आवर्स की फ्लाइंग की है तो आप 1000 × 5 विच इज 5,000 लैक्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, मतलब 5 लाख पर आवर। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर कंपोनेंट अकाउंट। हाँ बेटा, एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच इज योर ICA स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। तो इसमें क्या है बेटा, ए लिमिटेड परचेज्ड सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1 April 2001 and estimated their useful life for the purpose of financial statements prepared on the basis of Index. Following were the original cost and useful life of the various components of property, plant and equipment assessed on 1 April 2001। तो आपने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है उसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है बिल्डिंग का कंपोनेंट, एक प्लांट एंड मशीनरी, एक फर्नीचर फिक्चर्स, और इन तीनों की यूजफुल लाइफ डिफरेंट है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप इन तीनों कंपोनेंट, इन तीनों एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अलग अलग कंपोनेंट समझ कर रिकॉर्ड कर सकते हो, उनको अलग अलग डेप्रिशिएट कर सकते हो। अब इसने क्या बोला है, आगे क्या बोला है, ए लिमिटेड यूजेस अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देयर आर नो सैल्वेज वैल्यूज फॉर द थ्री कंपोनेंट्स। सैल्वेज वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू। अगर रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी है तो आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट को हम डेप्रिशिएट करेंगे, पूरी की पूरी कॉस्ट आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट बन जाएगी। तो उसने आप क्या पूछा है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन पर एनम टू बी रिकॉर्डेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2002। मतलब पहले साल में आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो बेटा सिंपल है, आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा वो सेपरेटली कैलकुलेट करोगे, बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, फर्नीचर फिक्सचर के लिए। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आएगा बेटा, ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आएगा बेटा आपका 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 15 विच इज पर ईयर आपको 10 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 10 मिलियन इज बेसिकली 1 करोड़। 1 करोड़ को 10 ईयर्स में अगर आपको चार्ज करना है तो 10 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और बेटा 35 लैक्स 7 ईयर्स की लाइफ है उसकी, तो 5 लैक्स पर ईयर डेप्रिसिएशन हो गया तो 5 लैक्स हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप इस प्लॉट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना चार्ज करोगे, 25 लैक्स पर एनम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था बेटा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा है, ठीक है, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा है तो लैंड तो मेरा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, राइट। लैंड इज माई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एंड बिल्डिंग इज माई डेप्रिशिएबल एसेट। तो हमें क्या करना होगा, हमने जो भी एसेट को खरीदा है या कंस्ट्रक्ट किया है उसको आप पहले दो पोर्शंस में डिवाइड करोगे, लैंड पोर्शन एंड बिल्डिंग पोर्शन।
फिर लैंड पोर्शन पे आप कोई चार्ज नहीं करोगे डेप्रिसिएशन, और बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। दैट्स इट। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर अब 11 पढ़ोगे तो उसमें सेम चीज़ है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ऑन 1 मई 2022 संस्कार लिमिटेड परचेज 42 लाख रुपीज वर्थ ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेयर हाउसिंग फॉर स्टॉकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने 42 रुपीज की लैंड को परचेज किया है कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ अ न्यू वेयर हाउस। द लैंड परचेज हैड एन ओल्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर। जो लैंड हमने परचेज किया उसके ऊपर एक ओल्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर था जिसको हमें हटाना पड़ेगा। और जब उसको हम हटाएंगे तो जो हमारा कुछ भी सैल्वेज मटेरियल आएगा उसको हम ऐसा स्क्रैप सोल्ड करेंगे। और ये जो डिमोलिशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस होगा। सो दिस कॉस्ट दैट विल बी इंकर्ड डिमोलिश द स्ट्रक्चर, इट इज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस। तो पर आपकी जो कॉस्टिंग करोगे उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके कॉस्ट रिकॉर्ड कर लोगे। द कंपनी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द वेयर हाउस ऑन 1 June 2002। नाउ रिमेंबर हियर, when was the land purchase? It was purchased on 1st of May, but the construction was started on 1st of June 2022. Following costs were incurred by the company with regard to purchase of land and construction of warehouse। तो क्या क्या कॉस्ट आपने इंकर किया, लीगल कॉस्ट इंकर किए, आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट फीस, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, सारी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर आपने सीमेंट परचेज किया, हेडर मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपने 15 लाख का है, जिसके अंदर आपका 1 लाख का जीएसटी भी है, और जीएसटी क्रेडिट जो अवेलेबल है वो 50% ऑफ पेमेंट का जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है। तो मतलब आपको 50,000 का जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा। तो जीएसटी क्रेडिट जो मिल जाएगा वो आपके कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 8 lakhs हैं। जनरल ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क 30,000 है, पर ये हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि जनरल ओवरहेड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माई कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड डायरेक्टली टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस। डायरेक्ट जो ओवरहेड होते हैं वो आपके इंकर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट इनकरेक्ट जो ओवरहेड्स है 35,000 पर मंथ वो आपको इंक्लूड कर। फिर इनकम रिसीव फ्रॉम लैंड यूजेस टेम्परेरी पार्किंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज। जो आपको इनकम रिसीव होती है फ्रॉम लैंड यूजिंग टेम्परेरी पार्किंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, बेटा ये आपकी कंस्ट्रक्शन से तो कुछ रिलेटेड नहीं है। तो इसको हमने एक वर्ड पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल ऑपरेशंस। इंसिडेंटल ऑपरेशंस में हमने क्या पढ़ा था बेटा प्रीवियस क्लास में, कि इंसिडेंटल ऑपरेशंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। Now, additional information क्या है, receipt of rupees 35,000 being proceeds from sale of salvaged and scrapped material from demolition। तो ये 35,000 रुपीज की जो आपकी कॉस्ट आपको जो सेल वैल्यू मिली है सेल्वेज मटेरियल की, ये आपकी इनकम है, बट ये हम किससे माइनस कर देंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन से, ताकि आपकी नेट कॉस्ट रिकॉर्ड। फिर मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वॉज वेस्टेड एंड फर्दर 120,000 वॉज स्पेंट टू रेक्टिफाई द रॉन्ग डिजाइन पर। आपका 40,000 का मटेरियल वेस्ट हुआ है और फर्दर 1,20,000 का आपका पैसा खर्च हुआ है फॉर टू रेक्टिफाई दी रॉन्ग डिजाइन वर्क। तो टोटल आपका कितना वेस्टेज हुआ है बेटा, 1,60,000 का। और ये 1,60,000 का बेटा जो वेस्टेज हुआ है, ये अभी यहाँ पर कुछ तो लिखा नहीं हुआ है कि अब नॉर्मल है नॉर्मल है, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि ये अब नॉर्मल वेस्टेज है, एंड देन ओनली वी कैन रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटीरियल। बट अगर आप इसको नॉर्मल अज्यूम करोगे तो आपको इसको माइनस नहीं करना। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है 10 मंथ्स की, वो कितनी है बेटा, वो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो गिवन है आपको ये 8 lakhs की है, 10 मंथ्स की है, विच किस दिन से, 1 June से लेकर 31 मार्च की। बट आपका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ है, अभी पढ़ते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन इसने बोला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 20th February। तो बेटा जब अगर 20th February को कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है तो आप एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 31 मार्च तक की थोड़ी लोगे, वो तो आप कब तक की लोगे, सिर्फ 28th February तक की लोगे। फिर उसने क्या बोला है कि जो आपका ये पीरियड है विच इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एज पर इंडिया 23। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कब से कब तक है बेटा, 1 June से लेकर 28th February तक का। आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से है, 28 जून 2022 से लेकर 31 नहीं 28 फरवरी 2020। तो आपको इसी पीरियड के रिलेटेड खर्चे जो है आप कैपिटलाइज कर सकते हो। और इन्होंने साथ साथ में आपको एक और हिंट दे दिया है कि ये सब्सटेंशियल पीरियड है, तो मतलब आपकी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होंगी अगर आगे इसमें बोरिंग कॉस्ट दी होगी। फिर आपका वेयर हाउस जो है वो यूज होना स्टार्ट हो गया 1 March 2023 से। ठीक है भाई, यूज हो गया तो मतलब आपका डेप्रिसिएशन किस दिन स्टार्ट होगा, 1 March से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका 28 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और 1 माह से अपना स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप 1 मंथ का डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हो। बिकॉज आपका ईयर एंड कब है बेटा, ईयर एंड जो आपका है, जिसमें गिवन नहीं है ईयर एंड, ईयर एंड आपको
दिया तो होना चाहिए, लेट्स सी आगे पता लगता है नहीं लगता है। Now again, the overall useful life of the factory building was estimated at 25 years. जो फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी बनी है उसकी जो यूजफुल लाइफ है 25 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन. However, it is estimated that the roof of the warehouse will need to be replaced after 15 years. बट आपको जो रूफ है उसको 15 साल बाद हटाना पड़ेगा. तो मतलब अगर आपकी जो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी उसमें से आपको दो पोर्शंस करने पड़ेंगे. एक आपकी रूफ की कॉस्ट और एक बेटा आपकी अदर्स. क्योंकि रूफ की जो यूजफुल लाइफ है वो 15 साल है और आपकी बाकी की बिल्डिंग की कॉस्ट 25 साल है. तो कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों को अलग अलग कॉम्पोनेंट बन करके रिड्यूस करना होगा. आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट करंट प्राइसेस वुड बी 25% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. तो इन्होंने क्या बोल दिया कि रूफ की कॉस्ट कितनी है, 25% ऑफ टोटल कॉस्ट. आप एस्टिमेट कैसे करोगे रूफ की कॉस्ट को, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी बिल्डिंग की उसमें से आप 25% रूफ को दे दोगे, बाकी परसेंट आपका 75% आपका बाकी एसेट की कॉस्ट हो जाएगी. At the end of 25-year period, Sanskar Limited is legally bound to demolish the factory and restore the site to its original condition. तो बेटा ये आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि आपको डिमोलिशन करना होगा और साइट को रिस्टोर करना होगा. The directors of the company estimate that the cost of demolition in 25 years time based on the prices prevailing at that time will be 80 lakh rupees. आपको 80 लाख रुपीस खर्चा करना होगा 25 साल बाद. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना होगा इन योर एसेट. An annual risk-adjusted discount rate which is appropriate to this project is 10% per annum. और आपका जो डिस्काउंट है वो 10% है. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेबल इन 25 years टाइम एट एन एनुअल डिस्काउंट रेट ऑफ 10% पर एनम इज दिस. तो एक रुपये जो आप 25 साल बाद पे करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 0.092 रुपी. तो आपको 80 लाख रुपीज की कितनी प्रेजेंट वैल्यू होगी, 0.092 इंटू 80. फिर लास्ट में बेटा इन्होंने आपको क्या दे दिया इन्फॉर्मेशन, लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है. संस्कार लिमिटेड रेज अ लोन ऑफ ₹60 lakhs एट द रेट ऑफ 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1 June 2002. आपने लोन किस दिन से स्टार्ट किया है बेटा, 1 June से स्टार्ट किया है. तो कैपिटलाइजेशन इसी दिन से स्टार्ट होगा. ये एज पर इंडिया सी है. The building of the warehouse meets the definition of qualifying asset in accordance with 23 borrowing cost. Sanskar Limited received an investment income of 25,000 on the temporary investments of proceeds. So standard NAS 23 के अकॉर्डिंग आपको जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है, इंटरेस्ट कॉस्ट आती है, उसमें से अगर आपने कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट अर्न की है तो उसको माइनस करना होता है. तो आपकी जो टोटल बोरिंग कॉस्ट आएगी उसमें से आपको 25,000 रुपीज माइनस करने होंगे टू फाइंड आउट द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट. अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ लैंड. और उन्होंने क्या बोला है कि जो आपकी कॉस्ट है डिमोलिशन की वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है टू द कॉस्ट ऑफ लैंड. मतलब लैंड की जब आप वैल्यू निकालोगे तो उसमें आपको डिमोलिशन की कॉस्ट को भी इंक्लूड करना है. बेटा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. जस्ट गिव मी अ मिनट. Let me open the notepad as well. Yeah, so we'll solve it here. चलो सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को. आंसर टू क्वेश्चन 11. दैट्स हाउ यू विल राइट इन एग्जाम. फिर आपको बेटा क्या क्या करना है इसके अंदर ये भी देख लो. इसने आपको बोला है आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस निकालनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना है फॉर द ईयर एंडेड. अच्छा ईयर एंडेड यहाँ पे बोला हुआ है कि आपका ईयर जो एंड जो है 31 मार्च का है. कैरिंग वैल्यू ऑफ वेयर हाउस टू बी टेकन टू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 31 मार्च 2003 और कैरिंग वैल्यू निकालनी है. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. सो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू वेयर हाउस. एक एक करके चीज़ें ऐड करते जाएंगे. ठीक है. तो पहले आपकी क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है बेटा, 42 लाख. फिर है बेटा इसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड के बाद आपकी ये, क्योंकि इसने यहाँ पर डिमोलिशन कॉस्ट की बात की हुई है और पहले एडजस्टमेंट आपकी डिमोलिशन कॉस्ट की है तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं. बेटा आपका ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ लैंड नेट ऑफ स्क्रैप प्रोसीड्स. ये कितनी हो जाएगी बेटा आपका, 1,35,000 माइनस 35,000. एग्जाम में आप इसको मार्क करते जाओगे जैसे जैसे आप इनको लिखते जाओगे. तो आपकी ये आपने वैल्यू लिख दी है. इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ सो दैट आपको ये
समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो जो वैल्यूज हैं उनको टिक मार्क करते जाओ, ताकि आपकी जो एग्जाम में कुछ छूटे ना। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू टिक कर दी, फिर आपने ये 1,35,000 टिक कर दिया और 35,000 टिक कर दिया, तो ये आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई। तो आपकी वो जो कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1 लाख। हाँ बेटा, आगे क्या है आपका? आगे इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, तो यहाँ तक तो हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। आप लीगल फीस ले लो, सीक्वेंस से ले लो। लीगल फीस आ जाएगी बेटा आपकी कितनी? 1,50,000। बेटा उसके बाद क्या है? आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट फीस। ये कितनी है बेटा आपकी? 2,70,000। फिर है आपकी कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन, हम ले चुके हैं, ये हमने ले लिया, ये ले लिया। अब नेक्स्ट क्या है आपका? साइट प्रिपरेशन चार्जेस फॉर वेयर हाउस, तो ये तो बेटा आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। साइट प्रिपरेशन चार्जेस ये हो जाएंगी आपकी 1 लाख। नेक्स्ट है बेटा परचेज ऑफ सीमेंट। अच्छा, इसमें एक एडजस्टमेंट भी थी कि आपके इतने एसेट वेस्ट हुए हैं, तो इस साथ साथ एक नोट भी लिख दो। नोट 1, एसेट्स वेस्टेड, एसेट्स नहीं मटेरियल वेस्टेड ऑफ रुपीज 1,60,000 is assumed to be abnormal wastage। तो अगर 1,60,000 बेटा आपकी abnormal wastage है, तो आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है, सीमेंट कॉस्ट है, वो कैसे कैसे निकलेगी देखो। 15 लाख की तो आपकी टोटल कॉस्ट आई है, इसमें से आपने बेटा 1,60,000 की abnormal वेस्टेज कर दी है, और 50,000 को आपको इसमें से क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपकी जो नेट कॉस्ट बचेगी वो कितनी बचेगी बेटा? 2,10,000 माइनस होगा इसमें से, 2 लाख जाएगा तो 13, 12,90,000। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सीमेंट आ जाएगी। तो ये भी आ गया आपका बेटा कवर यहाँ पर, और ये भी कवर हो गया, और ये भी कवर। नाउ अब आगे क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में इन्होंने क्या लिखा है? ये 10 महीने की है, और हमारा कंस्ट्रक्शन कितने महीने में हुआ है? आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है बेटा 1 जून से स्टार्ट होकर 28 फरवरी तक, तो कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पर? 6 और 2 8 मंथ्स हो जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। बेटा इसमें आपके 9 मंथ्स हो जाएंगे, 8 नहीं 9 मंथ्स हो जाएंगे। तो 9 मंथ्स होंगे तो आपको 9 मंथ्स की एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंक्लूड करनी होगी। तो आपका जो 8 लाख का खर्चा है वो 10 मंथ्स का है, आपको 9 मंथ्स का लेना है, तो आपको कितना हो जाएगा? ये 7,20,000। तो आपकी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये नहीं हुई अभी नीचे वाली, और आपने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी डाल। जनरल ओवरहेड्स हमें लेने नहीं है, तो ये हमारे हट गए। और ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट भी आप ले लो। डायरेक्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड्स बेटा कितने हैं? 35,000 पर मंथ, और आपको कितने मंथ के लेने हैं? 9 मंथ के लेने हैं। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा आपके? 3,15,000। 3,35,000 इंटू 9 इज 3,15,000। तो डायरेक्ट ओवरहेड्स भी आ गए। और इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लैंड एज अ टेम्परेरी यूजेज, ये हमें लेना नहीं है क्योंकि आपकी इंसिडेंटल कॉस्ट है, तो आपको उसको लेना नहीं है। एक आप नोट डाल सकते हो नीचे, नोट 2 करके, द इंसिडेंटल ऑपरेशंस इनकम एंड एक्सपेंसेस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी कैपिटलाइज एज पर इंड AS 60। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री कंप्लीट हुआ था आपका 28 फरवरी को, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। बोरिंग कॉस्ट बेटा क्या है आपकी? कितने का लोन लिया है आपने? 60 लैक्स का लोन लिया है, 60 लैक्स का लोन लिया है, और 10% पर एनम के हिसाब से लिया है। और आपका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है 10 मंथ्स के लिए हुआ है, तो आपको 10/12 लेना होगा। बट इसमें से आपने जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है वो कितनी कमाई है बेटा? 25,000, ये भी माइनस करना होगा आपको। नेट जो है बोरिंग कॉस्ट लेनी, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 60 लैक्स इंटू 10% इज 6 लैक्स। 6 लैक्स डिवाइड बाई 12 इज 50,000, तो 5 लैक्स। 5 लैक्स बेटा आपकी ये बोरिंग कॉस्ट आ गई, इसमें से 25,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 4,75,000। नाउ बेटा आपकी बोरिंग कॉस्ट भी कवर हो गई हमारी, ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया, और आपकी ये भी कवर हो गया। अब ये हमने कवर नहीं किया है, ये हमें कवर करना है, ये भी कवर करना है। अच्छा बेटा, अब आपको एक और चीज़ रह गई है इसके अंदर, आपकी कॉस्ट ऑफ
डिमोलिशन एंड कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन एंड साइट रिस्टोरेशन, ये भी आपको इंक्लूड करना है। और ये कितनी है बेटा आपका 80 lakhs इंटू 0.09, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा, कर लेते हैं। 80 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 0.09 विच विल बी 7,36,000। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन। हाँ बेटा, ये भी कवर हो गया अपना, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब आपको बेटा कुछ भी नहीं ऐड करना है इसके अंदर, सिर्फ अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल आपकी जो वैल्यू निकलेगी उसको फिर आपको टू पोर्शंस में डिवाइड करना है। एक आपका लैंड का पोर्शन होगा, एक आपका बिल्डिंग का पोर्शन होगा। फिर जो बिल्डिंग का पोर्शन होगा इसमें भी आपके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक आपका आ जाएगा बेटा रूफ का कंपोनेंट, बिकॉज आपको कंपोनेंट अकाउंट करनी है, और एक आ जाएगा आपका रिमेनिंग। फिर बेटा जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो डेप्रिसिएशन बेटा आप किस पे चार्ज करोगे, लेट मी जस्ट ऐड सम प्लेस स्पेस हियर। तो बेटा आपका यहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग आपका ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी एसेट की ना। फिर आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो रूफ पे जो चार्ज होगा, वो रूफ की वैल्यू का कितना होगा, रूफ की आपकी जो कॉस्ट है, जो सॉरी रूफ की जो यूजफुल लाइफ है वो 15 ईयर्स है, तो इनटू 1/15, ये पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा, और आपको 1 मंथ का निकालना है, तो ये हो जाएगा। और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है डेप बिल्डिंग का, उस पे भी आपको कितना करना है, 1/25 इंटू 1/12। ओके, एंड देन आपकी जो है वो क्लोजिंग वैल्यू निकल जाएगी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच इज वेयर। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इसका टोटल आएगा 38,56,000। इसका टोटल आएगा 38,56,000। इसको आप टोटल कर लो, इसका आंसर आपका यही आएगा। अच्छा बेटा, इसमें से लैंड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, बेटा लैंड में आएगी आपकी सर, बेटा आएगी लैंड में आपका 4,20,000। फिर इसने कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन को बोला था कि आपको अज्यूम करना है, ये देखो, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन को क्या बोला है, अज्यूम करना है आपको कि ये आपका कॉस्ट ऑफ लैंड का पार्ट है। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ लैंड। तो ये भी मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड में हो जाएगी, 1 लाख रुपीज। और बेटा इसके अलावा जो आपने लीगल फीस पे की है फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्ड ऑनरशिप, तो ये भी मेरे कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, 1,50,000 का। तो ये आपकी लैंड की कॉस्ट हो जाएगी, बाकी कॉस्ट जो है आपकी वो बिल्डिंग की कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी लैंड की कॉस्ट कितनी होगी बेटा इसमें से, 42 lakhs प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000। सो बेटा ये जो 38,56,000 है बेटा, टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट है। और आपकी लैंड की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा, 42 + 1 + 1.5 विच इज 44.5। तो लैंड की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा आपकी, 44,50,000। और टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा आपका, 38,56,000। तो उसको हम यहाँ से डिलीट करके यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये रूफ कितना होगा बेटा आपका, 38,56,000 का 25%। और आपका रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा आपका, 38,56,000 का 75%। ठीक है, तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो कितना होएगा बेटा, 38,56 का आपका 25% होगा बेटा, 9,64,000। और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 38,56,000, 28 लैक्स
92,000। फिर आपका जो रूफ का वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितने पे होगा? 9,64,000 पे। और जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर डेप्रिसिएशन आपका 25 ईयर्स के हिसाब से चार्ज होगा। तो इस पहले इसका कर लेते हैं। 9,64,000 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। बेटा ये आ जाएगा आपका, 1 सेकेंड, 64,000 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 12। ये आ जाएगा बेटा आपका 5,356। और इसका डेप्रिसिएशन आएगा दूसरे का 28,92,000 डिवाइड बाय 25, देन अगेन डिवाइड बाय 12 पर मंथ। तो आ जाएगा आपका 9,640। तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? आपकी टोटल लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी 38,56,000 प्लस 44,50 हो जाएगी आपकी 83,86,000। इसमें से अगर आपको क्लोजिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग निकालनी है तो वो हो जाएगी बेटा 5,356,6,4 हो जाएगी 82,91,000। इसमें से लैंड का पोर्शन कितना होगा उसको भी लिख लेते हैं। लैंड होगी बेटा इसमें से आपकी 44,50,000 की। और जो आपकी बिल्डिंग होगी वो होगी बेटा आपकी 38,41,000। ये आपका फाइनल सोल्यूशन। ओके। नाउ बेटा इसमें ना क्वेश्चन जब आप एग्जाम के सजेस्टेड आंसर देखोगे तो उन्होंने इसको दो अजम्पशन लेके सॉल्व किया हुआ है। एक पहली अजम्पशन ये लिया है कि जो 1,20,000 का जो डैमेज फर्दर कॉस्ट चार्ज है ये किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये ऊपर इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऊपर इंक्लूडेड है तो आपको माइनस नहीं करना। और दूसरा अजम्पशन क्या लिया हुआ है कि 1,20,000 का जो एक्सपेंस है वो मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूडेड है। तो दो वे से इसका आंसर दिया हुआ है। ऑल्दो क्वेश्चन पढ़ के हमें ऐसा लग रहा था कि इट इज इंक्लूडेड, तो हमने इसको सेकेंड वे में सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड वे में देखोगे तो आपका आंसर जो है इससे मैच होगा। 44,50,000 की आपकी लैंड की कॉस्ट है, बाकी आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट है विच इज 38,41,000। ऑल राइट। नाउ कमिंग बैक टू बेटा, coming back to the PDF, now we have solved this question. It's a good question. Okay, now let's move forward towards the next concept. बेटा अभी तक हमने क्या, मैंने जब आपको डेप्रिसिएशन मेथड का बताया था, आई टोल्ड यू द डेप्रिसिएशन मेथड इज बेसिकली एन एस्टिमेशन। ओके, एंड यूजफुल लाइफ इज डेफिनेटली एन एस्टिमेशन बिकॉज आपको एस्टिमेट करनी पड़ती है कि यूजफुल लाइफ कितनी होगी। और रेसिडुअल वैल्यू इज ऑल्सो एन एस्टिमेशन। तो ये तीनों चीजें हैं, ये क्या है बेटा? आपको तीनों चीजें जो हैं दे आर बेसिकली एन एस्टिमेशन। और अगर एस्टिमेशन होते हैं और इनमें चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट्स। और चेंज इन एस्टिमेट्स को हमें कैसे रिकॉर्ड करना होता है? चेंज इन एस्टिमेट्स को आपको आई इंड एस 8 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना हो। और इंडिया सेट बोलता है कि जो भी चेंज इन एस्टिमेशन होगा वो आपका प्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली आपको रिकॉर्ड करना है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट गाइडेंस इज रिटन। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन इट, एंड देन वी विल बी डन फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, सो पहले बेटा जैसे इसमें क्या हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एसेट विच कॉस्ट रुपीज 10,000 was estimated to have a useful life of 10 years।
$10,000 का आपका, ₹10,000 का आपका एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है और रेसिडुअल वैल्यू इसकी ₹2,000 है। तो आपकी डिप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? 8,000 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर द रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 1 ईयर द रेसिडुअल वैल्यू वाज रिवाइज टू 2,900। तो हमने क्या किया, 1 साल के बाद आपकी जो रेसिडुअल वैल्यू है उसको 2,000 से बढ़ाकर 2,900 कर दी। तो बेटा आपका चेंज इन एस्टिमेट हो जाएगा। तो ये प्रोस्पेक्टिवली रिकॉर्ड हुआ, इसमें आपको कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करना। फिर आफ्टर 2 ईयर्स द यूजफुल लाइफ वाज रिवाइज टू 4 रिमेनिंग ईयर्स। और 2 ईयर्स के बाद, मतलब 2 साल के बाद, आपने यूजफुल लाइफ को 10 से घटाकर 4 कर दिया। मतलब 10 से जो आपकी 2 साल बाद लाइफ कितनी बची होगी बेटा? 8 को उठाकर हमने 4 कर दिया। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर 1, 2 एंड 3। तो ईयर 1 में बेटा कैसे चार्ज होगा आपका? 10,000 आपका बेटा 10,000 आपका क्या है? कॉस्ट है। और आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना होगा बेटा इसके ऊपर? 8,000 डिवाइड बाई 10 विच इज 800। तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना हो जाएगा? 800। तो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 9,200। नेक्स्ट ईयर में बेटा आपका जो कॉस्ट है वो तो 10,000 ही रहेगी, ग्रॉस कॉस्ट तो आपकी 10,000 ही रहेगी। आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा बेटा 9,200 माइनस 2,900 डिवाइड बाई 9, बिकॉज आपकी अब कॉस्ट जो है, नेट कॉस्ट 9,200 है और 2,900 का आपको रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी। आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 9,200 माइनस 2,900। और आपको डेप्रिशिएट कितना करना है? 9 ईयर्स में डेप्रिशिएट करना है, तो आपको पर ईयर डेप्रिशिएशन 700 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 700 प्लस 800 विच इज 1,500। और आपकी जो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी बुक्स में वो हो जाएगी 8,500। फिर थर्ड ईयर में जब आप आओगे तो उन्होंने बोला है कि हमने इसकी यूजफुल लाइफ को हटाकर आप 4 ईयर्स कर दिया है। तब आप डेप्रिसिएशन कितने ईयर्स के लिए चार्ज करोगे? 4 ईयर्स के लिए चार्ज करोगे। और किस वैल्यू का चार्ज करोगे? 8,500 का। तो 8,500 माइनस 2,900, 2,900 तो आपकी रेसिडुअल वैल्यू तो रहेगी रहेगी ना। तो 8,500 माइनस 2,900 डिवाइड बाई 4 विच इज 400 पर एनम। तो आपका जो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,400 चार्ज होगा और 1,500 में ऐड होकर वो 2,900 बन जाएगा। तो आपकी जो एसेट की वैल्यू बच जाएगी, कैरिंग अमाउंट, वो बच जाएगी 70,100 नेट अमाउंट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल का है। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, तो आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अ होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड पे सॉल्व होगा जो ऊपर वाला क्वेश्चन। नाउ बेटा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज रिगार्डिंग टू this only, change in method of depreciation. This is also coming from study material. So pause the video, watch this question, sorry, read this question completely, and then we will solve it together. Okay, so इसमें क्या है बेटा? A Limited purchased some property, plant and equipment on 1st of April 2001 and estimated their useful lives for the purpose of financial statements prepared on the basis of Ind AS. Following were the original cost, the useful life of the various components of property, plant and equipment assessed on 1st of April 2001. तो आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उन्होंने खरीदा है उसमें आपकी 3 चीजें हैं। तो बेटा ये तो रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन का। अच्छा नहीं बेटा, कोई रेपिटेशन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है फॉर चेंज इन लाइफ्स के लिए। अब इसमें पूरा और भी चेंज है, मतलब इस क्वेश्चन में एडिशन है। तो आपकी जो यूजफुल लाइफ है वो 15 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 7 ईयर्स है। कॉम्पोनेंट में मैंने आपको लगाया हुआ है कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग के लिए, बट ये अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पार्ट कवर किया था। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो एबीसी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड पर। और आपने एसेट को कब परचेज किया है? 1st of April 2001 को। On 1st of April 2004, after 3 years, the entity reviewed the following useful lives of the property, plant and equipment through an external valuation expert. उन्होंने इसको रिवैल्यू बाई लाइफ को रिवैल्यू करवाया है। और अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? आफ्टर 4 ईयर्स 10 ईयर्स बची है, इसकी 7 बची है और इसकी 5 बची है। तो वैसे आफ्टर 4 ईयर्स इनकी लाइफ, ओरिजिनल लाइफ कितनी बची होगी? 11, 6 और 7 - 4 3। बट इन्होंने इसको बढ़ा करके, इसको घटा करके 10 कर दिया, इसको बढ़ा करके 7 कर दिया और इसको बढ़ा करके 5 कर दिया। There were no salvage values for the three components of the property, plant and equipment earlier, initially, or at the time of useful life. Examine the impact of revaluation of useful life on the statement of profit and loss for the year ending 31st March 2005. देखो बेटा, अब क्या होगा इसके अंदर? आप 3 सालों के लिए तो इसी रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इन्हीं यूजफुल लाइफ पे। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? ओरिजिनल डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आएगा यहाँ पर हमारा? ये हमारा आएगा बेटा 10 लाख रुपीज इसका आएगा। इसका पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? इसका भी बेटा आपका 1 करोड़ है ये, 1 करोड़ 10 लाख आएगा। बेटा इसका आएगा आपका 5 लाख। तो पर ईयर आपका 25 लाख का डेप्रिसिएशन आएगा। 25 लाख का डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगा, बट
ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टोटल इट बिकॉज आपके ये तीन कंपोनेंट्स हैं। तो आपकी जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो 10 और 5 25 आ गया। तो आपकी जो रिवाइज एनुअल डेप्रिसिएशन, हम्म, तो आपकी बेटा इन्होंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, बट हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी जो कैरिंग वैल्यू होगी, कैरिंग वैल्यू होगी आफ्टर 3 years ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जिंग, वो कितनी होगी बेटा? इसकी इसकी होगी बेटा आपकी 1 crore 20 lakhs, क्योंकि आपने 30 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा, इस पे भी 30 lakhs का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा, तो इसकी हो जाएगी 70 lakhs। और इस पे आपने बेटा 15 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा 3 साल में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 20 lakhs। अब आपकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो कितनी हो गई? 10। तो पर ईयर आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? हम 1 crore 20 lakhs डिवाइड बाय 10, तो कितनी हो जाएगी आपका 12 लाख का डेप्रिसिएशन। फिर आपको, अब यूजफुल लाइफ 7 हो गई है और ये 70 तो 10 lakhs में आपको सिर्फ 10 lakhs रहेगा। और इसमें बेटा आपकी 5 years है और 20 लाख को 5 में ईयर्स में चार्ज करना है, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पर ईयर वो रिवाइज डेप्रिसिएशन 4 lakhs रहेगा। तो आपको रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा बेटा? 26 lakhs पर एनम। तो आपको जो नेट इम्पैक्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो 1 लाख का डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है। नाउ बेटा मूविंग फॉरवर्ड वी आर लेफ्ट विद वन कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन, ये और कर लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। सेजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको कब डेप्रिसिएशन को सीज करना है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब एसेट को आप सेल कर दोगे तब आपको डेप्रिसिएशन को सीज करना है, या फिर एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो गई तब वापस एसेट को सीज करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date on which asset is classified as held for sale। अगर आपने उनको हेल्ड ऑफ सेल क्लासीफाई कर दिया है, दैट डेट व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज कब होगा? जब वो सेल हो गया है या उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो खत्म हो गई है, और नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्ट। So then we will say the cessation of depreciation is okay. Thanks, students, for joining it. Now we will end our today's lecture and we will meet in next lecture.